Hello everyone, this is Harpravesh Kaur and today we will talk about class 9's biology and the topic for today is natural resources. Our earth is the only planet in this whole universe जहाँ पे life exist करती है. ऐसा क्यों है? बाकी planets में life क्यों नहीं है? Because हमारी earth में वो सब है जो life के existence के लिए important है. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the earth. Because हमारी earth में वो सब resources हैं और sun की energy भी मिलती है हमें, that's why life is possible on earth. तो वो natural resources जो हमें already मिले हुए हैं, वो क्या हैं? We'll talk about them today. तो वो natural resources हैं water, air, soil. These three basic resources जो naturally हमें available हैं because we are lucky and that's why earth में life possible है. There is no such planet अभी तक तो नहीं मिला. Maybe in future we get another planet जहाँ पे ये resources available हों. But for the time being, earth is the only planet. The outer crust of the earth जो हमारी earth का outer crust है वो बना हुआ है soil से और you may say lithosphere से. The outermost covering is the lithosphere. उसके बाद आता है water. Water covers around 75% of the earth. It is also found underground. These comprise the hydrosphere. तो जितना भी earth या soil है उसे हम कहते हैं lithosphere. So the first one is lithosphere, that is the soil. And then comes the water. जब हम water की बात करते हैं उसे हम कहते हैं hydrosphere. This is the second natural resource. And the third is the air जो हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. So these are the three basic natural resources that are available to us जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है अर्थ के ऊपर. Living things are found where these three exist. जहाँ पे भी ये तीनों resources available होंगे वहाँ पे life होगी. तो अर्थ में ये तीनों resources available हैं. That's why we have life on our earth. This life supporting zone of the earth where the atmosphere, hydrosphere and the lithosphere interact and make a possible environment जहाँ पे life possible है उसे हम कहते हैं biosphere. जहाँ पे ये तीनों resources लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कंबाइन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पे एक नया स्फीयर बनता है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है. द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल. एटमॉस्फेयर जो है, जो एयर है, उसका रोल क्या है? वो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको स्टेडी रखती है. द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी. तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमारी अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी रखता है. द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स. दिन में टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ जाए वो ये देखता है, और रात में वो देखता है कि जितनी भी हीट है वो ज़्यादा एस्केप ना कर जाए, तो टेम्परेचर को एक तरह से मेंटेन करता है. तो एटमॉस्फेयर हमारा एक क्लाइमेट कंट्रोल की तरह एक्ट करता है. The movement of air, that is known as winds, changes that take place in our atmosphere due to the heating of air and formation of water. Water vapor is formed due to the heating of water bodies and activities of living organisms. जितनी भी changes हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही हैं, जब हमारी एयर हीट होती है या वाटर वेपर फॉर्म होती है, तो जो मूवमेंट होती है एयर की उसे हम कहते हैं winds. Then comes rain. जो वाटर बॉडीज हीट होती हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है. इवेपोरेशन के बाद जो वाटर है दैट गोज अप इन द एयर, और वहाँ पर जाकर देन वाटर कंडेंसेस बैक और वो होता है रेन. तो दीज आर दी बेसिक टर्म्स जो आपने ऑल थ्रू योर स्कूल लाइफ पढ़ी है अभी तक. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर विल स्टडी लेटर. सो तब तक जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स. विंड, रेन क्या होता है? जब वाटर वेपर जो है वो फॉर्म होता है, वो इवेपोरेट होता है, उसके बाद वो स्काई में जाता है और ऊपर जाके वो कंडेंस होता है, देन कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन. The hot air rises up carrying the water vapor with it. As the air rises, it expands and cools. This cooling causes the water vapor in the air to condense in the form of tiny droplets. तो water जो है वो evaporate होता है, water vapors जो है वो ऊपर जाते हैं, travel करते हैं, उसके बाद वो cool होते हैं और वो condense हो जाते हैं. condense होने के बाद वो वापस water की form में नीचे गिरते हैं जिसे हम rain कहते हैं. So now comes air pollution. Pollution क्या होता है? जो pollutants cause करते हैं.
अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है? द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, हमारी कार्स में पेट्रोल होता है, जब कार्स में पेट्रोल होता है वो बर्न होता है, तो पेट्रोल के अंदर फर्दर क्या है? नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब भी पेट्रोल बर्न होगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है वो भी बर्न होंगे। ऑफ कोर्स दे आर बर्न टू। तो उसके बाद क्या होता है? ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड दीज आर वेरी डेंजरस। तो सिर्फ इनकी इनहेलेशन ही डेंजरस नहीं है, एसिड रेन भी जो है वो इनकी वजह से ही होती है, बिकॉज दीज ऑक्साइड्स आर इन द एटमॉस्फेयर। और जब ये सेम वाटर के साथ ये ट्रैवल करते हैं तो जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है। तो जितनी भी रेन सीजन में नहीं होती है, जो एक तो रेनी सीजन होता है, जब वहाँ रेन होती है तो वी से कि वो रेन्स नेचुरली हो रही हैं। तो जितनी भी रेन्स जो अपार्ट फ्रॉम दिस सीजन होती हैं वो मोस्टली एसिड रेन्स होती हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट्स कॉजेज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड, स्पेशली इन द कोल्ड वेदर। आपने कोल्ड वेदर में देखा होगा कि ऑलरेडी वाटर जो है वो एयर में होता है, तो इसलिए दिखता कम है हमें, जिसे हम फॉग कहते हैं कि फॉगी वेदर होता है। बट जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उस फॉग के अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं और वो फॉग स्मोक बन जाती है। स्मोक में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती, कुछ नहीं दिखता आपको। जो टाइम आता है जब हमें कुछ नहीं दिखता, व्हेनेवर यू ड्राइव, सर्दियों में यूजुअली फॉग होती है, बट देन जब पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं तो उस फॉग को हम टर्म देते हैं स्मॉग।